Hello everyone, I welcome you all to Manu Law Classes Current Affair Analysis. In this particular video, we will discuss July 18, The Hindu Delhi edition newspaper. Our main topic of concern for today is first about Delhi dispute. Then we will discuss about Black Sea Grain Initiative. Then we will discuss about the multi-dimensional poverty. Then we will discuss about a new arm which is being established by Foxconn. Then we will discuss about the Uniform Civil Code. Then we will discuss about Rupee Dirham settlement system and also about the Digital Data Protection Bill. So these are our main topics, and we will also discuss about the Kuno National Park and about the cheetah. So these are the major important topics which we will discuss in this particular video. So let's start with the very first news that is coming in from Delhi, the national capital. And here, as we know, there has been a dispute with regard to the ordinance which is being passed by the president. And here, the state government or the chief minister, he is basically raising his voice against this particular ordinance. यहाँ पे बोला गया है कि ये जो central ordinance है, it is basically taking away the civil services power or the power to appoint, to transfer or to allocate any portfolio to the civil servants. It is being taken away by the state government and it is being given to the lieutenant governor or the central government, who is basically represented by the LG, by appointing a committee, by appointing or by forming a body which is basically doing this National Capital Civil Services Authority. This body is basically doing what? This basic body will maintain, or it will talk about all these matters like appointment, transfer and the service allocation of the civil servant. As we know, services are listed in entry 41 of the state list. So it is a matter of the state list or the state government, but through this ordinance, the central government is transferring this power to the lieutenant general or lieutenant governor, and here it is being given to him. And the ordinance will be tabled in the parliament during the monsoon session, and the court should wait, and it will either get passed or it will be replaced, not passed. So this is the major news with regard to the Delhi dispute, and state government is entering into the Supreme Court to fight against this matter. So this was an important news which was coming in from Delhi. इस न्यूज को हमने कई बार डिस्कस किया है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज. मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है व्हाट इज द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी. सो प्लीज डू रेफर द अर्लियर डीएनए in order to have more clarity on this particular topic. Okay, moving further toward our next important news that is coming in from Russia Ukraine grain deal. As we know, a treaty was signed, Black Sea Grain Initiative. This was signed in order to broker a deal between Russia and Ukraine, and this particular brokering was done by United Nations and a country named Turkey. तो यूनाइटेड नेशन और टर्की ने मिलके इस पर्टिकुलर डील को ब्रोकर किया था, और यहाँ पे ये तय हुआ था कि जो भी आपका वॉर अफेक्टेड एरिया है उसके थ्रू भी आपका जो ग्रेन है वो सप्लाई होगा फ्रॉम यूक्रेन. सो देयर विल बी अ सेफ पैसेज ऑफ ऑल दीज ग्रेन्स. But Russia halted this particular deal because the main bridge, which was basically coming under used for the transport of the grain, it was being broken by Ukraine from an attack which it did. So basically because of that, the particular bridge was broken, and that is the matter of concern for Ukraine. So here basically it will, or the Kremlin spokesman Dmitry Peskov said, Russia will suspend this particular initiative until its demand to get its own food and fertilizer to the world are met. Okay, so this is the statement which was given by Russia. और ये यहाँ पे ब्रिज टूट गया था, उससे भी नाराज है रशिया, तो इसीलिए उसने इस डील को रोक दिया है. So this was an important news. So you should know about what is Black Sea Grain Initiative. इसके बारे में भी मैंने already discuss किया हुआ है. Moving further toward our next important article that is coming in from Niti Aayog report, which says
that 13.5 crore people has been lifted out of the multidimensional poverty. So here basically India has registered a significant decline of around 9.89 percent point in the multidimensionally poor index, or here these state has showing a sign of improvement. They are coming out of the multidimensional poverty as said by Niti Aayog. Okay, so just remember this particular index, National Multidimensional Poverty Index, which is being released by Niti Aayog, and it is saying that 13.5 crore people are being lifted out of the multidimensional poverty. Okay, सो यहाँ पे बोला गया है कि एक्यूट डेप्रिवेशन जो हेल्थ में था, एजुकेशन में था या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में था, इसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और ये रिपोर्ट ये कहता है कि जो रूरल एरियाज हैं उसमें फास्टेस्ट डिक्लाइन मिला है हमें पॉवर्टी में, फ्रॉम 32.59 टू 19.28%। और इसके चलते आपके जो मल्टी डायमेंशनल पुअर स्टेट हैं जैसे कि आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इसमें मैक्सिमम लोग जो पहले मल्टी डायमेंशनली पुअर थे उनका नंबर जो है वो कम हुआ है। यहाँ पे आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, बिहार का, झारखंड का, मेघालय का, उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। तो बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसमें टॉप में है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार टॉप में है, उसके बाद झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब आपके टॉप में है। और यहाँ पे स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में इन स्टेट्स ने काफी अच्छा काम किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कम करने में। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो पुअर थी और अब ये धीरे धीरे पॉवर्टी से बाहर आ रही है। यूपी में रजिस्टर किया है लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर विद 3.43 करोड़ पीपल एस्केपिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ओके, so this is an important article, this is an important fact। अब ये जो रिपोर्ट है आपका ये कहता है किस बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ NFHS 2019-21 और यहाँ पे इसके बेसिस पे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग जो है वो रिलीज करती है। ओके, और यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी यूज की जाती है वो ग्लोबल लेवल की है, जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको देखा जाता है, उसके बेसिस पे इसको मेजर किया जाता है। Okay, so this was an important article. Moving further toward our next important article, basically इसमें एक छोटी सी point important है। हम सबको पता है there has been flooding in Delhi and the Yamuna river level is increasing again. So there is again a scenario which will come of flooding. तो यहाँ पे basically main concern क्या है? एक तो फ्लड का कंसर्न है ही, इसके चलते लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है। दूसरा कंसर्न है वाटर बॉर्न डिजीजेस का, बिकॉज अभी बारिश का टाइम है तो इसीलिए डेंगू के जो केसेस हैं वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पे वाटर लॉगिंग इतनी ज्यादा हो रही है, दैट इज द बेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द डेंगी इंसेक्ट या डेंगी इन्फेक्शन। जो आपका डेंगी का मच्छर होता है उसका यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड सबसे ज्यादा अच्छा ग्राउंड होता है वाटर लॉग्ड एरिया। तो यहाँ पे फ्लडिंग के चलते बहुत सारी जगहों पे वाटर लॉगिंग हो रही है एंड दिस इज बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग इन more cases of the dengue, malaria and all these waterborne diseases. So this was an important article which was basically vector-borne diseases, जिसमें आपका डेंगी मलेरिया होता है, वाटर लॉगिंग के चलते बहुत ज्यादा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। So only this much was important in this particular article. Moving further toward our next important article that is coming in from the state section, and here we will discuss about the Foxconn. So basically Foxconn R proposes a new plant in Karnataka. Just remember this point, it is very important. Foxconn है क्या? Foxconn Industrial Internet, ये basically आपका सब्सिडरी है आईफोन मेकर Foxconn का और यहाँ पे इसने प्रपोजल रखा है that it will set up a plant in Tumakuru in Karnataka, okay, with a total investment outlay of 8,800 crore। और यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करेगा स्क्रीन्स को और आउटर कवरिंग्स को। अगर हम पहले की बात करें तो इंडिया जो था वहां पे असेंबली के लिए इंडिया को यूज किया जाता था, अलग अलग जगह से पार्ट आते थे और यहाँ पे असेंबल किया जाता था। बट यहाँ पे अगर एक ऐसा प्लांट सेटअप किया जा रहा है जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, सो इट विल बी अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड providing employment to Indian youth. Okay, so here basically there will be a manufactured screen, outer covering,
apart from the mechanical component for the phones. So it is being said that 14,000 jobs ये आपकी क्रिएट होंगी इस एरिया के अराउंड, जो आपका तुमकारू कर्नाटका जो है उस, एंड दिस विल डेफिनेटली help in employing the youth. Moving further toward our article from the editorial section. So here basically a news is coming in from Uniform Civil Code. यहाँ पे हमें पता है आर्टिकल 44 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बीपीएससी में, दैट इज डीलिंग विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया है और यहाँ पे अगेन एक आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है. सो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं, 22nd लॉ कमीशन जो है उसने बोला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रपोजल 22nd लॉ कमीशन ने दिया है. फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन. ओके, यहाँ पे बेसिकली एक डिबेट चल रहा है और बोला जा रहा है कि ये जो बेसिकली आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो काम क्या करेगा, जितने भी पर्सनल लॉज हैं ये आपके यूनिफॉर्म हो जाएंगे और ये सबके लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो, सबके लिए इक्वल होंगे. तो यहाँ पे पर्सनल लॉ इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो आपका रिलीजन और सोशल ओरिजिन के बेसिस पे है. हर एक सिटीजन का अलग रिलीजन है, अलग सोशल ओरिजिन है और उसके बेसिस पे उसके पर्सनल लॉज है. तो इसमें बात की जा रही है, इसमें ऑथर ऐसा कह रहे हैं कि ये जो सारे लॉज हैं, ये जो सारे पर्सनल लॉज हैं, एक तरीके से दे आर इक्वली डिस्क्रिमिनेटरी फॉर वुमेन, क्योंकि यहाँ पे प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ पेट्रियार्कल फ्रेमिंग से ये सारे लॉज बनाए गए हैं और पेट्रियार्कल तरीके से इन सारे लोगों को, जो आपके मेल्स हैं, उनको यहाँ पे प्रिविलेज मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कर्ता जो होता है या हेड जो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, वो सिर्फ एक मेल हो सकता है. एक डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन को कोई हक नहीं होता कि उसको मेंटेनेंस मिले एक टाइम पीरियड के लिए. कुछ ट्राइब्स में आपका ऐसा होता है कि विमेन्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं है. उसके अलावा अगर एक पारसी विमेन अपने कम्युनिटी के बाहर, मतलब इफ अ विमेन इज पारसी एंड शी मैरी हिंदू और समवन एल्स, तो उसको कोई भी प्रॉपर्टी का कोई भी अधिकार नहीं होता, साथ में उसको उसके कम्युनिटी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है. तो यहाँ पे ये हमें दिखाता है कि these all personal law are discriminatory for women, they are equally discriminatory. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ऑथर कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, इंडिया का जो सिविल कोड है वो यूनिफॉर्म है, ऑलरेडी यूनिफॉर्म है. कैसे? बिकॉज इट इज टोटली डिस्क्रिमिनेटरी फॉर विमेन. इसके अलावा नॉट अबाउट ओनली विमेन, टॉकिंग अबाउट द एलजीबीटी कम्युनिटी, तो यहाँ पे जो आपके एलजीबीटी कम्युनिटी हैं, ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट ने इसको कहा था कि इनको एक साथ इग्नोर कर देना चाहिए. देयर वाज अ टर्म फ्लॉटिज्म और जेडजेम. So here basically they should be ignored completely as said by the British colonists. That was the time when there was a criminalization of all these homosexuality और LGBTs को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जो अभी भी हम देखते हैं करनी पड़ती है. तो यहाँ पे उनकी चॉइस, उनकी डिग्निटी, उनकी फ्रीडम को बेसिकली हम कर्व कर रहे हैं और उन पे अपनी आइडियोलॉजी को थोप रहे हैं, और दैट इज द प्रॉब्लम विद द पर्सनल लॉज. So that's why everyone is saying in order to provide equal rights to everyone, whether it is a women, whether they are belonging to the LGBT community, they should get equal right. They should have the power or they should have the power to make decision or choice based on equality. So यहाँ पे इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना इतना ज्यादा जरूरी है. इसके अलावा जो ऑथर है वो डाइवर्सिटी की बात करते हैं. यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि ऐसा कहा गया है डाइवर्सिटी इज बेस्ड ऑन रिलीजन, बट यहाँ पे एक पॉइंट हम नहीं मेंशन कर रहे हैं. प्रताप भानु मेहता, इन्होंने रिमाइंडर दिया था, इंडिया वाज नॉट कंसीव्ड एज अ फेडरेशन ऑफ रिलीजन. B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इन्होंने बोला था व्हाई वी आर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू रिलीजन, व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड दैट. तो यहाँ पे यही सारे फैक्ट्स को वापस लाया जा रहा है कि हम रिलीजन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं और इक्वालिटी को इसके कंपैरिजन में कम क्यों कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर बात हो लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी की, तो उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे रिलीजन की ही बात करें तो सेल्फ अपॉइंटेड हेड जो होते हैं रिलीजियस ग्रुप के, they have resisted calls for a common civil code by resorting to the argument that it infringes upon the religious freedom. अब यहाँ पे religious freedom की बात आ गई है.
लेकिन रिलीजियस फ्रीडम का क्या मतलब होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? इट मीन्स फ्रीडम टू अडॉप्ट द फेथ ऑफ वंस चॉइस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए यूसीसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम मीन्स कि आप अपने धर्म को अपने हिसाब से चूज कीजिए, अपने फेथ को अपने हिसाब से चूज कीजिए। पब्लिक वर्शिप करना है पब्लिक वर्शिप कीजिए। तो यहाँ पे ये जो यूसीसी है या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट इज नॉट इन्फ्रिंजिंग ऑन दैट राइट। ओके, सो दिस वाज द मेन पॉइंट विच वाज गिवन बाय द ऑथर। और यहाँ पे बात की गई है, अगर हम फ्रीडम की ही बात करें रिलीजन में, तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला टेम्पल केस, वहां पे विमेन्स को अलाउड नहीं था, मेंस्ट्रुएटिंग विमेन्स को अलाउड नहीं था, बट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दे शुड बी अलाउड। तो इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के या राइट टू रिलीजन में भी बहुत सारे चॉइसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस दिए हैं। सो यूसीसी इज नॉट इंटरवीनिंग इन दैट। तो यहाँ पे यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। इसके अलावा जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि नॉट सिर्फ विमेन को ही, ये विमेन के लिए ही डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, इट इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटरी फॉर एलजीबीटी कम्युनिटी। तो इसके लिए भी कोर्ट ने बहुत सारा डिसीजन दिया है। और यहाँ पे उन्होंने बोला है, given the recognition implicitly granted to them with the reading down of the section 377 of the Indian Penal Code in 2018। बेसिकली जो सेक्शन 377 था वो क्रिमिनलाइज करता था आपका होमोसेक्सुअलिटी को। तो ऑलरेडी ये सारे लॉज आपके स्ट्रक डाउन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि उनके रिलीजन की फ्रीडम को हम इन्फ्रिंज कर रहे हैं यूसीसी से, या हम डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप होगा किसी के लिए। इट इज good for everyone and it is also providing religious freedom to everyone. So this is the main argument of author. This was important point of this particular article. We will discuss in news later on क्योंकि पीछे भी एक important article इस पे आया है rupees dirham settlement system पे। Moving further toward another important article, a bill that fences in the right of information. अभी recently digital personal data protection bill को पास किया है यूनियन कैबिनेट ने। और यहाँ पे बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसके सेक्शन जे जो है सेक्शन 8(1) विच इज हैविंग 8(1)J, इसको बेसिकली ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बताते हैं सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, और उसके बाद ऑथर बताते हैं कि हाउ दिस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल is infringing upon that right. So here basically the author starts with Indian Right to Information Act. It was implemented on October 12, 2005. Just remember the date. और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉ था टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी कि हमारे जो मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, या हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में पता करने के लिए सबसे बेस्ट लॉ हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था। और इसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी जो थी इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ ये भी इंश्योर हो रही। साथ में इसके थ्रू जो सिटीजन्स थे उनको एम्पावर किया जा रहा था और उनको ऐसा फील लाया जा रहा था कि वो रूलर्स हैं या ओनर्स हैं इंडिया के। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, वी द पीपल of India and we live in a democratic world. These 2 points says that who is the owner or who is the ruler of India? The people. जो लोग हैं या आम जनता है वो आपके रूलर्स हैं। तो यहाँ पे यही बात की गई है। अब ये जो एक्ट था ये पास क्यों हुआ था, क्योंकि मजदूर किसान शक्ति संगठन इनका बेसिकली रूरल राजस्थान में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चला था और इसके बाद ये जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इसको लॉ बनाया गया था। तो यहाँ पे इस लॉ को एक अच्छे तरीके से बनाया गया था सो दैट वी कैन हैव ट्रांसपेरेंसी इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्क। ओके, करप्शन को अवॉइड करने के लिए, गवर्नमेंट को मोर अकाउंटेबल बनाने के लिए इस एक्ट को बेसिकली पास किया गया था। और यहाँ पे सिटीजन्स को लगा आरटीआई इज लाइक अ फिश टू वाटर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके सेक्शंस हैं अलग अलग, सेक्शन 8(1)
जे। इट प्रोवाइड्स वेरियस एग्जेम्पशन, और इस एग्जेम्पशन का यूज CIOs ने किया, मतलब जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं या आप जिसके अगेंस्ट जो आपका आंसर देंगे RTI का, उन लोगों ने बहुत ज्यादा इस सेक्शन का मिसयूज किया। अब व्हाट दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट, इट एग्जेम्प्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक एक्टिविटी और विच इज एन इन्वेजन ऑन द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसमें आपका इस एग्जेम्पशन में बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो आपके सामने रखे ही नहीं गए। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से मैटर्स ऐसे हैं जो आपके इसमें मिसयूज हुए हैं और सामने रखे नहीं गए? तो इसमें आता है आपका डिटेल्स अबाउट द बेनिफिशियरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फंड, बोगस कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, घोस्ट एम्प्लॉयज, ग्रॉस आर्बिट्रेरीनेस, करप्शन इन सिलेक्शन फॉर जॉब, नॉन कन्फॉर्मेंस टू द रूल्स एंड लॉज। तो ये सारे मैटर्स में इस सेक्शन का यूज किया गया और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें नहीं मिली बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन। अब यहाँ पे ये जो आपका नया डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, इट सीक्स टू अमेंड RTI एक्ट सेक्शन 81J एंड बेसिकली यहाँ पे इसमें एग्जेम्प्टिंग ऑफिसर जो है जे में एग्जेम्प्टिव इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, उसको अमेंड किया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत अगर ये अमेंडमेंट आ जाता है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन विच कैन बी रिलेटेड टू अ पर्सन कुड बी लीगली डिनाइड। Most information could be shown as being related to a person and hence the law would become right to deny for the public information officer। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपका जो PIO है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो नहीं देना चाहता है, तो विद द अमेंडमेंट ऑफ दिस एक्ट और जब ये आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हो जाएगा, उसके पास और राइट्स हो जाएंगी एंड ही कैन बेसिकली डिनाई एनी इंफॉर्मेशन विच ही फील्स इज पर्सनल इन नेचर, लेकिन एक्चुअल में वो पर्सनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बेनिफिशियरीज की बात कर रही हूँ, बेनिफिशियरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फंड, तो दिस इज एन इंफॉर्मेशन विच शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट कि कितना फंड कहाँ जा रहा है, कौन सा फंड हमारा यूज हो रहा है, बट यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। इसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ एफिडेविट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अनफेयर असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड जॉब सीकर्स इन द गवर्नमेंट, बट ये सारी चीजें हमें मिल नहीं रही हैं बेस्ड ऑन द पर्सनल इंफॉर्मेशन। Okay, so this is an important point. Just remember about the RTI Act, just remember about the new bill, Digital Personal Data Protection Bill, and remember about this particular section. Okay, moving further, basically अभी यहाँ पे एक न्यूज आई है, अल्कराज, he is the youngest, he is only 20 years old, और इन्होंने डिफीट किया है 23 टाइम्स मेजर विनर नोवाक जोकोविक को। ओके, सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। और जस्ट रिमेंबर, जो अभी आपका विंबलडन 2023 का टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें बेसिकली इन्होंने हराया है, अल्कराज ने हराया है नोवाक जोकोविक को। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट in nature. Moving further toward our next article, that is from the text and context section, and here basically the news is about the cheetahs which has been introduced in the Kuno National Park. तो हमें पता चला है कूनो नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा चीतास की डेथ्स हो गई हैं। 11 चीता लाए गए थे, उसमें अराउंड 5 की डेथ हो गई है, और साथ में जो 4 कब्स बॉर्न हुए थे उसमें से 3 कब्स की डेथ हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली ये न्यूज है कि प्रोजेक्ट चीता प्रोग्राम क्या है, और यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन हमने किया है, इज इट राइट और रॉन्ग। प्रोजेक्ट चीता की अगर बात करें तो इसका मेन पर्पस क्या है कि इंडिया के जो चीतास हैं वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके थे। अब देयर वाज अ न्यूज कि हम ईरान से एशियन चीता लाएंगे। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ चीता, फर्स्ट वन इज अफ्रीकन, सेकेंड वन इज एशियन। इंडिया में जो चीता थे देवर एशियन चीतास, दे हैव बीन एक्सटिंक्ट। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर हंटिंग की थी हमने चीतास की, and that was the main reason behind the extinction of these Asian cheetahs in India. Now, second country where these are found is in Iran. But ईरान ने रिफ्यूज कर दिया एशियन चीतास को भेजने के लिए इंडिया। देन वी अप्रोच्ड अफ्रीका, हियर देयर आर अफ्रीकन चीतास, और 2 कंट्रीज अग्रीड, वन वाज नामीबिया एंड सेकंड वाज साउथ अफ्रीका, और यहाँ से हमने चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया कूनो नेशनल पार्क। So this was basically under Project Cheetah, जो आपका चीता रिलोकेशन प्रोग्राम है, और यहाँ पे ये चाहता है कि जो हमारा ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुका है एक प्रजाति,
उसको हम फिर से उसकी पॉपुलेशन जो है उसको मेंटेन करें और फिर से हम चीतास को वापस इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करें। सो हेयर बेसिकली टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीकन और नामीबियन चीता, इनकी आदत होती है, चीतास जो होते हैं इनकी एक हैबिट होती है, ये अपना एरिया अलोकेट करते हैं and if someone else or some other cheetah enters into their area, so they basically fight. So cheetahs have a habit, specifically of African cheetah, they have a habit of living in fenced reserve. But India में ऐसा कुछ है नहीं, fencing हमने की नहीं है, provide हमने किया नहीं है fencing, and here the condition are unfenced and wild condition. तो यहाँ पे इसीलिए basically adapt नहीं कर पा रहे हैं। 11 चीतास ट्रांसलोकेट किए गए थे, जिसमें से 4 जो थे वो स्पेसिफिकली डिजाइन थे 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने के लिए। इनके एनक्लोजर को क्या कहा गया था? बोमास, जस्ट रिमेंबर दिस टर्म, टू हेल्प द एनिमल एक्लिमेटाइज टू द इंडियन कंडीशन। 5 ट्रांसलोकेटेड चीता जो थे, 11 में से 5 ट्रांसलोकेटेड चीता दे डाइड, और 3 कब्स जो थे, जो अभी जन्मे थे, 4 कब्स में से 3 कब्स दे डाइड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लाइक इनका जो नेचर होता है उसके बारे में बात करें, तो जो चीता का लिविंग रेशियो होता है, मतलब कितने चीता सरवाइव करेंगे, वो बहुत कम होता है। इट इज रफली अराउंड 10%, मतलब सर्वाइवल रेट जो होता है, सर्वाइवल रेट ऑफ दीज कब्स, इट इज रफली अराउंड 10%। तो मतलब सिर्फ 10% बच्चे बचेंगे, बाकी सब डाई कर जाते हैं। सो दिस वॉज एन फैक्ट गिवन बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, इतने सारे चीता मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सो हेयर दिस फैक्ट वॉज गिवन बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। अब जब ये चीतास डाई किए, एक चीता था जिसका निकनेम था सूर्या, व्हेन ही वाज फाउंड डेड, तो इसका पूरा एग्जामिन किया गया और यहाँ पे पाया गया इन चीतास के गले में एक रेडियो कॉलर, मतलब इस कॉलर में एक पट्टा टाइप का है और इसमें आपका इनको ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलर फिटेड, इनको रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम चिप्स के थ्रू इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो इस पट्टे में ऐसा टेक्नोलॉजी लगाया गया। बट देयर वॉज एन इंस्टेंस कि हमें पता चला कि ये जो सूर्या चीता ही डाइड बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन विद द मैगट्स, और यहाँ पे इस मैगट्स का लार्वा जो है वो उस कॉलर में पाया गया। नाउ दिस वॉज द मेन कंसर्न कि वी आर पुटिंग these collars around all the cheetahs and soon they will also get infected with the same disease. So this was the reason कि अभी यहाँ पे ये इतना न्यूज में है। बेसिकली जो अफ्रीकन चीता होते हैं, they have an habit to lick themselves, but इसके थ्रू जो पैरासाइट इन्फेक्शन होता है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड कि अब बोला जा रहा है कि दे शुड गेट मेडिकल एग्जामिनेशन। सारे चीतास को लाएंगे, उसके बाद उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि इज इट अ प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो, और उसके बेसिस पे आपका कमिटी जो है वो रिपोर्ट देगी। सो दिस वाज इन न्यूज क्वाइट सिंस अ लॉन्ग टाइम। जस्ट रिमेंबर व्हाट इज दिस चीता प्रोजेक्ट इज एंड द सर्वाइवल रेशियो ऑफ द चीता, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। बहुत दिनों से न्यूज में आ रहा है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2023 में, लाइक अराउंड 1 ईयर अगो, हमने बेसिकली 8 चीता नामीबिया से इंपोर्ट किया था, मतलब हम लेके आए थे नामीबिया से, और 12 चीता फिर से हम लेके आए थे साउथ अफ्रीका से फरवरी 2023 में। ओके, बट हाउ सक्सेसफुल इट विल बी, we have to see after this committee's report. Okay, moving further toward our next important article that is coming in from international relation. Here basically USA is handing over 105 antiquities to India following an agreement. So here USA is handing over 105 trafficked antiquities to India. रिपेट्रिएशन सेरेमनी हुआ था, जिसमें आपका ये सारे एंटिक्विटीज जो हैं वो इंडिया को वापस किए गए, एंड द रेस्टिट्यूशन ऑफ द आर्टिफैक्ट्स इज अ फॉलो अप ऑफ एन एग्रीमेंट टू द इफेक्ट ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट टू द यूएस लास्ट। हियर बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। जस्ट रिमेंबर द नेम, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए टू हेल्प preventing the illegal trafficking of the cultural artifact in future. So this was an important news. बहुत सारे आपके ऐसे एंटिक्विटीज होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो आपके ट्रैफिक कर दिए जाते हैं, कई तो एक्सकवेशन के टाइम पे ही ट्रैफिक कर दिए जाते हैं। तो अब इनको वापस लाने के लिए, रिपेट्रिएट करने के लिए, रेस्टिट्यूशन करने के लिए यहाँ पे इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट विद यूएसए। ओके, जस्ट रिमेंबर ओनली दिस मच ऑफ पॉइंट, दिस मच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ देयर इज अ न्यूज ऑन न्यू ड्रोन पॉलिसी with some restriction
as said by our Union Home Minister Amit Shah. He said that there will be a new drone policy which will be unveiled soon, entailing the host of restriction and compulsory registration of all unmanned vehicle or all unmanned aerial vehicle. तो UAV जो होता है वो आपका ड्रोन का नाम होता है. ड्रोन is also called UAV. So here basically there will be a new law which will ease or somehow curb the restriction. देखते हैं आगे क्या होता है. So just remember about the drone policy which is being implemented. और यहाँ पे कहा गया था कि जो बॉर्डरिंग एरिया है या ऐसी एरियाज हैं, अगर वहां पे आप ड्रोन है उसको फ्लाई करेंगे, सो यू शुड गेट द परमिशन. विदाउट परमिशन आप ड्रोन को फ्लाई नहीं करवा सकते. ओके. एंड ऐसा भी कहा गया है कि ड्रोन्स वर यूज्ड फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, and that's why the registration of these drones was made compulsory as they were being used for the cross border delivery of the weapons and the narcotics. तो इसीलिए drones का registration आपका जो था वो compulsory कर दिया गया था. Now there will be a new drone policy soon. Moving further toward our next important article that is coming in from news section, that is about rupee dirham deal is bilateral envoy as said by UAE ambassador to India. So basically इंडिया और यूएई ने रुपी दिहरम डील को साइन किया है. इट वॉज साइंड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू अबू धाबी, और ये कहा गया है इट इज बायलिटरल. ऐसा नहीं है कि हम कोई डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ पे होगा क्या, जो यूएई है और जो इंडिया है उनके बीच में ट्रेड जो होगा वो रुपी में और दिहरम में होगा. ओके. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच यू शुड नो. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें, जब से हमने CEPA को इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विच वाज साइंड इन मई 2022, जो यूएई इंडिया का ट्रेड है इट हैज बीन इंक्रीज्ड अप्रोक्सीमेटली बाय 15%. सो दैट इज द मेन रीजन कि इसके लिए हमारे पास एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम ट्रेड कर सके. सो वी चूज इंडियन रुपी एंड द दिहरम, यूएई दिहरम, टू ट्रेड इंस्टेड ऑफ डॉलर्स. ओके. So this was an important news. Apart from that, there is also an air service agreement which has been signed, which India is basically trying to agree on it. So air service agreement जो होगा ये basically क्या करेगा, negotiation had reached out and here basically the UAE wants to be as flexible as possible in the visa regime of the Indians. So यहाँ पे visa regime जो होगा उसको ease out किया जाएगा so that this agreement can work. And also UAE is a dialogue partner of Shanghai Cooperation Organization. ये point important है. साथ में it has also applied for being a member of the BRICS grouping for the emerging economies. So that's why UAE के साथ cooperation for India with India and UAE cooperation is very important. And also UAE has invited Mr. Modi to attend the COP28 climate change conference which will be held in Dubai in November. Okay, so these are the important points. Moving further toward our next important article, that is from a personality section, Mangala Narikar. She was a mathematician and scientist and she passed away. Just remember who was she, with which field she was associated. This is important for you. Now ISRO's second orbit raising maneuver is successful. ISRO successfully performed the second orbit raising maneuver, that is the earthbound apogee firing of Chandrayaan 3. We already know July 14 को Chandrayaan 3 को लॉन्च किया गया था, तो उसका जो आपका सेकेंड ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर है वो भी सक्सेसफुली पास कर लिया है. और उसके थ्रू इसके बाद अब देखना है कि कैसे वो सॉफ्ट लैंडिंग करता है, कैसे वो मून के सरफेस पे जाता है. ओके. सो मैन्यूवर वाज परफॉर्म्ड बाय द ISRO telemetry tracking and command network which is in Bengaluru, and it basically placed Chandrayaan 3 spacecraft in the 41603 cross 226 kilometer orbit. Okay, so this is a news in transition. We will see later on क्या क्या यहाँ पे होता है. Chandrayaan 3 DRDO propulsion system in focus of the India expect 3 more Scorpion. यहाँ पे बेसिकली हम सबको पता है फ्रांस में अभी जब बैसले परेड के टाइम पे आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड फ्रांस, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस डील साइन हुई थी दैट इज रिलेटेड टू द 3 मोर स्कॉर्पियन सबमरीन एंड ऑल्सो अबाउट द रफाल एम जेट. ओके, सो इसी के साथ
French is also becoming a co-developer of these submarine, which has already invested over 100 crore in the 3 workshop with tool and infrastructure for important tasks and spares for the maintenance of the critical system. So this group is working for qualifying the air independent propulsion system, which is being developed by the DRDO for the installation in these Scorpions, okay, which will be given by France. Moving further toward our next important article, that is talking about Russia is exiting from the UN broker deal to export Ukrainian grain via the Black Sea. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पे कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से रशिया इज एग्जिटिंग आउट। ये यूएन ब्रोकर डील थी और साथ में इसको ब्रोकर किसने किया था? टर्की ने किया था। मूविंग फर्दर टुवर्ड आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज कमिंग इन फ्रॉम Heat wave bakes South European and sparking warning to the citizen to stay inside, drink water and limit exercise. So here basically हमने एक और रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा था कि जो यूरोप है इट इज बिकमिंग द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट, बहुत जल्दी हॉट हो रहा है ये। तो यहाँ पे हीट वेव्स जो है वो सदर्न यूरोप में बहुत ज्यादा चल रहा है और इसके चलते लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सो दिस वाज एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल विच वी डेल्ट टुडे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दैट इज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक सेक्शन। US and India is working to make investment easier for the energy transition. इसमें एक important आपका platform है that is Just Energy Transition Partnership. This partnership is working to find an alternative of fossil fuel which we are using for fuel or energy production. So basically ये जो आपका important platform है Just Energy Transition Partnership, इसमें बेसिकली आपकी कंट्रीज हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम, दे हैव आल्सो एग्रीड फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड हियर बेसिकली दे विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल एंड दे विल become a wealthier, like opt for the resources which are renewable in nature. Okay, and USA and India is basically working to lower down the cost of the capital and increase private investment to fast track इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन। जितना जल्दी हम फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट होके ऐसी रिन्यूएबल एनर्जीज के थ्रू पास आएंगे उतना जल्दी हम लोग अपना कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यूएस इज हेल्पिंग अस एंड इट विल इंक्रीज द प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन। सो दिस इज फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज को। अब अपनी अगले सेशन में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए ट्यून्ड रहना है मनु लॉ क्लासेस में, जिसमें हम एग्जाम रिलेटेड कंटेंट को डिस्कस करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।